हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस और पोटेंशियल एनर्जी। हमने जो लास्ट टाइम तक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होती क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू हम क्या करेंगे, कुछ सिस्टम लेंगे, पॉइंट चार्ज सिस्टम, उनकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करेंगे। सो अगर हम पहले देखें पॉइंट चार्ज, हमें इतना पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट चार्ज है ये प्लस, अभी पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमने ड्रॉ कर दी। अब तुम्हें पता है हम यहां आ गए दूर, ये हमने दूसरी ड्रॉ कर दी। तीसरी वाली ड्रॉ करना एक अलग ही तरीका है। एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम चार्ज, तो फील्ड की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीजिंग। अगेन अब चार्ज से दूर जा रहे हो तो फील्ड डिक्रीजेस एज ई इनवर्सली आर स्क्वायर। इफ फील्ड इज डिक्रीजिंग, then I told you जो dr is inversely proportional to field intensity. So field decreases, then dr must increases. That means distance between these two surfaces should also increase like this way. And if you are moving further away, that distance should also increase. You can check this gap, and this gap. So as you move away, that gap must be increasing. So this way we can draw equipotential surfaces for a point charge. Field line will be outward, and you can check out these are normal at every point. So this is field line, and these are equipotential surface. आप साथ के साथ साइड बाय साइड लिख करेंगे विद मी। सेकंड, हम एक डायपोल ले लेते हैं। इन दिस केस इफ आई टेक अ नेगेटिव चार्ज, then this arrow will be inward. Dipole. We have a negative charge and positive. And if you check and notice on C is point P, negative is a field due to negative this word, field due to positive is also this word. So net field will be subtraction. Inside the dipole between these 2 points, field negative and positive, field add. So here field is stronger comparatively to here at that point. Let's say here point at 5 cm and there is also a point at 5 cm. The field at this point will be stronger than this point. Now as field is stronger here, the distance between two equipotential surfaces
will be lesser here and will be larger here. So let's see the structure. Initially, I have drawn a single equipotential surface point charge. Now, on the second, when you draw the second surface, you must remember field is stronger here, and इस region में weaker है, and in this region it is also weaker. Now, stronger field, so gap is this way. Yeah, you have noticed here I have increased the gap by small value and here comparatively large value. This will be equipotential surface. Same thing, we must take care here. As you increase the gap here, comparatively increase large gap there. So these are not perfectly spherical. They comes out to be like cylindrical. Now, as they do not intersect, so if randomly if you want to draw common, that will be like this way. And if you want to draw the electric field lines, start from positive and end negative. And this line must be normal to every point of this sphere. You can see, you can get from here a wonderful pattern of electric field of lines. Same way we can draw here. For negative, field line will be inward, and for positive, arrows are outward. So this is equipotential surface pattern along with electric field line pattern for a dipole. So while drawing the equipotential surface, you must remember the point, how the field value, because that's how exactly this gap between equipotential surface will vary. Now, we will take two positive charges. What will happen? Single positive, double. Now, again, you can see if we check the field intensity here, due to this and due to this. So, in this region, field will be stronger and their field will be weaker. Just remember that. So we can say stronger here, weaker here, stronger here. So there will be small increase in gap and
and comparatively large increase. So first equipotential surface, second, see how I am increasing the gap. That gap must be noted. Weaker field, gap must be larger. So this way, we can further draw a common field line, equipotential surfaces. And if you want to draw the field lines, you can. And this will give a wonderful pattern of electric field lines. You can see remember field line will, and here at point we have considered zero potential. That's why at this gap there will be no potential. Sorry, at this point electric field will be zero. That's why no field line will pass from this point. Field line will go nearby this point. So this way we can draw electric field and equipotential surfaces for 2-point charges. Now let's say we have uniform field lines intensity, then uniform field, and if electric field lines are along x-axis. Now, of course, equipotential surface perpendicular slide always. That means they will be along y-z plane. And as field is uniform, we must remember that gap between these equipotential surface must be same. You can see this gap. Means gap will be same. And what means अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, if this is S then these will lie in Y and Z plane. Sometimes क्वेश्चन से इलेक्ट्रिक अलॉन्ग वाई एक्सिस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होंगी, वो वाई में है तो बाकी दो में वो होंगी एक्स में. अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड था, अगर मैं कह दूं फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजिंग अलोंग एक्स एक्सिस. नाउ व्हाट विल हैपन? And I said these are perpendicular. And field is increasing, तो gap must be decreasing. कि उसको उल्टा है, इनवर्सली है, वो बढ़ेगा तो ये घटेगा, वो घटेगा तो ये बढ़ेगा. तो अगर यहां मुझे क्या करना है, here
that will decrease the gap. You can check out. Yeah, just look out at the board. Don't see anywhere else. These are like this way. You can see field increase. The gap is decreasing. So अगर इससे field decrease हो रहा है तो that gap should be increasing. So question can be appear in either way, in uniform, increasing or decreasing. So this gap will decide or simply state or specify how the field is varying. It is either increasing or decreasing, or it is a constant field. We cannot randomly draw these equipotential fields. हेलो दोस्तों, आई एम सुमित बंसल। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पता क्या है, अब तक हम पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ चुके हैं और उनके प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की थी। इवन हमने उनको ड्रॉप भी किया था। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। एक तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही आसान टॉपिक है और इसका जो लिंक करना है हमें पिछले टॉपिक से करना है, पोटेंशियल से। और अगर ध्यान से देखा जाए, पोटेंशियल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी होती है और एनर्जी अगर याद आया तो मुझे वर्क डन से होती है और वर्क डन मुझे याद आया मतलब वर्क डन तो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर 1 कूलम चार्ज ले लूं तो इस वर्क डन को बोल दिया था हमने पोटेंशियल। और अगर 1 कूलम चार्ज की जगह पर्टिकुलर चार्ज ले लूं, लेट्स से 2, 3, 4 एनी चार्ज, 0.5, 0.8 एनी चार्ज, तो जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन विल बी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो इन शॉर्ट आपको जो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी है दोनों एक दूसरे से लिंक है कंप्लीटली। फर्क इतना है कि 1 कूलम के लिए बोल दिया जाए तो पोटेंशियल एंड फॉर अदर वैल्यू ऑफ चार्ज इट बिकम वर्क डन बिकम पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस करने वाली चीजें नहीं करनी और बहुत सिंपल तरीके से हमें इसको समझना है क्योंकि आसान है। सबसे अच्छी बात अगर अब तक के टॉपिक के लिए रहा तो इसको आप चुटकियों में कर दोगे और ये कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है। इसके अंदर आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2.4 सिस्टम पढ़ेंगे, 3.4 सिस्टम पढ़ेंगे, देन पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड और एक सिस्टम के लिए हम जनरल फॉर्मूला हम जनरलाइज दे देंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन हम कराएंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, कई क्वेश्चन ऐसे लगते हैं हमें देखने में बहुत डरावने से, बड़े बड़े से लगता है कि होगा ही नहीं सो, लेकिन अगर कंसेप्ट देखा जाए बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। मतलब कहीं ना वर्क डन निकालने के लिए बोला जाए कि भाई सिस्टम ऐसा था हमने ऐसा बना दिया तो वर्क डन बताओ, कुछ नहीं करना क्योंकि वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एक छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लेकर चलेंगे और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पर्टिकुलरली हम स्टडी करने वाले हैं। तो अगर मैं आज देखूं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अभी बताया था कि अगर 1 एप्पल का सेब आपने पूछा है, सॉरी 1 एप्पल का सेब नहीं, 1 एप्पल का आपने प्राइस पूछा है तो दैट विल बी अ पोटेंशियल। आपने 10 एप्पल खरीदे, हाफ एप्पल खरीदा है, 2 एप्पल खरीदते हो, दैट विल बी जो अमाउंट आप पे कर रहे हो दैट विल बी कॉल्ड एनर्जी और स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर इसको देखिए, एक चार्ज लिया, मैंने कहा था पोटेंशियल में कि मैं टेस्ट को चार्ज को लाऊंगा मतलब 1 कूलम, लेकिन मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करूंगा तो अगेन आई एम रिपीटिंग 1 कूलम नहीं, एक पर्टिकुलर चार्ज क्यों बोलूंगा। इसमें मैं कहूंगा कि मैं क्यों चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाता है, ये मेरा टारगेट है, डेस्टिनेशन है जहां पर मुझे पहुंचना है, ये मेरा एम की तरह काम करेगा। अब मुझे यहाँ आना है, अब आऊंगा तो धीरे धीरे आऊंगा, चल के मुझे आना है, धीरे धीरे आना है। अब मुझे कहना है कि कितना मुझे दूर तक चलना है, कितना वर्क डन निकालना है, तो वो तरीके हम बात करते हैं। छोटा सा लेके उसको बड़ा करना, छोटा लेना मतलब स्मॉल पार्ट dx वाला लेंगे और बड़ा करना मतलब एड ऑन करना
तो इंटीग्रेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो रास्ते में तो एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, ये कहीं भी हो सकता है, और इसकी डिस्टेंस कितनी ले ली एच। तो क्या ये इस पर फोर्स लगाएगा? हाँ बिल्कुल लगाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायर भी करेगा। और एफ की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होगा, के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर। रिपल्सिव है तो डायरेक्शन दूर भगाएगा, लेकिन मैं इसको कहाँ ला रहा हूं? पास। मानो मैंने बताया था कि पहले थोड़े से लिए चुनने से के लिए हमें स्टडी करना, बहुत वेरी फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल, देन वी विल इंटीग्रेट। So let's see, small distance is dx. Then work done will be what? F dx cos 180 k q by x square. That's it. तो वर्क डन मेरे पास जो निकल के आया है, वर्क डन मैंने किस लिए निकाला है? ए से लेके बी तक के लिए निकाला है। तो ये आ गया के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। लेकिन हमें कहां से कहां मूव करना था? इंफिनिटी से लेके इस पॉइंट तक। तो ऐसे मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट बनाए, इन पॉइंट बहुत सारे बनेंगे, उन सबको फिर मैं ऐड ऑन करूंगा। उनके ऐड ऑन करने से मुझे टोटल वर्क डन वहां से यहां तक का मिल जाएगा। तो अगर इसको मैं ऐड ऑन करने के लिए और छोटे छोटे पार्ट के लिए ऐड ऑन करना है, तो उसके लिए हमारे पास आता है इंटीग्रेशन। तो माइनस के क्यू क्यू। अब इंटीग्रेट कहां से कहां करना है? एक्स कहां से कहां आया? इंफिनिटी से आर तक आना है, और इंफिनिटी का वर्जन 0 लिया है, तो आर का वर्जन डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है डब्ल्यू के क्यू क्यू, और नेक्स्ट टाइप का होता है माइनस 1 बाय एक्स। डब्ल्यू माइनस 0 इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू। इसको ओपन करेंगे तो माइनस 1 बाय आर प्लस 1 बाय इंफिनिटी, ये पैटर्न 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस चेंज कर देंगे तो के क्यू क्यू बाय आर, और ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। So this is simple formula for potential, and you can easily see पोटेंशियल में सिंगल क्यू आता है, के क्यू बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ जाएगा? के क्यू क्यू बाय आर। ऑफ कोर्स ये वर्क डन है तो स्केलर होगा, और एसआई यूनिट जूल होगी। मतलब कुछ नया नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल वाला जैसा वर्क डन निकालना है। इंटीग्रेशन से वर्क डन निकालोगे, आंसर निकाल के आ जाएगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, क्योंकि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। और अगर यहां से मैं इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, क्या किया मैंने? एक गिवन चार्ज को इंफिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पर लाया, बहुत धीरे धीरे, तो वो वर्क डन स्टोर हुआ एनर्जी। तो मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ गिवन चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। वर्क done in bringing a given charge from infinity to particular point without acceleration। वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूले पे फोकस करना है। फॉर्मूला है के क्यू क्यू बाय आर। यहाँ पे क्यू वो चार्ज है जिसको हम ला रहे हैं, कैपिटल क्यू वो चार्ज है जिसकी वजह से निकाल रहे हैं, आर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। हाँ, इस पॉइंट पर अलग पोटेंशियल जो होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी। हर पॉइंट पे एनर्जी अलग अलग होती है, ये भी हमें याद रखना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और इसको हम पोटेंशियल जब 2.4 सिस्टम भी बोल देते हैं। अभी हमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा करेंगे जो हमने इस फॉर्मूला पढ़ा, इस फॉर्मूले के ऊपर
क्वेश्चंस करके देखते हैं कैसे होंगे। और तुम्हें कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, तुम्हें फॉर्मूले पर फोकस करना है। और फॉर्मूले में याद है स्केलर है, स्केलर है तो चार्जेस के साइन कंसीडर करने हैं। जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लेना है, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लेना है। ऐसे मत करना याद नहीं मैग्नीट्यूड नहीं, नहीं वो चीजें फोर्स में बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में बताई थी, जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। लेकिन इस वाले केसेस में मैं साइन लेके चल रहे हैं। याद है जो वेक्टर वाली चीजें है वहां मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, ये स्केलर है तो साइन भी लेके चलना है चार्जेस का। तो अगर सिंपल सी चीजें लगाए, कोई मतलब ऐसी चीजें नहीं जिनमें बहुत सोचना पड़े, लगाना पड़े कि हाँ बहुत सोचना है, ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल सा फॉर्मूला ले लो, एक 4 माइक्रोकूलम चार्ज है, एक 6 माइक्रोकूलम चार्ज है, माइनस वाला दे दिया मैंने यहाँ पे। और क्या दिया कि मान लो दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। कोई नई चीज नहीं बोलता मैं, और सिर्फ ये बोल दिया जाएगा बताओ पोटेंशियल एनर्जी बताओ दोनों की कितनी होगी। तो करना है क्या, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भाई K बाय R। किसी को भी स्मॉल क्यू ले लो, किसी को भी कैपिटल क्यू ले लो। तो क्या बार हम ध्यान लिख सकते हैं E1 Q1 Q2 बाय R। कोई नहीं सोचना, ज्यादा नहीं सोचना, लिमिटेड, उसी से काम कीजिएगा। ज्यादा सोचने की जरूरत होगी तो ना सोचेंगे। तो Q1 हमने इसको ले लिया 4 माइक्रो, Q2 हमने इसको ले लिया, माइनस साइन में यहां लगा दूंगा, बोलना मत कि माइनस साइन यहां से आया, तो ये इसका माइनस यहां लगा दिया। और डिस्टेंस है 10, जिसको मीटर में भी कन्वर्ट करना है, भूलना मत। तो मैंने देखा है ऐसे लोगों को डर लगता था मीटर से, जबकि बी ऑनेस्ट माइकल बहुत आसान होता है, इसको ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना होता, फॉर्मूला याद करना, अब पुट करनी, दैट्स इट। तो डरना किस बात का भाई। तो यहां से 10 की पावर -1 है, और अगर सोल्व करें -1 है, +10 हो गया, -2 हो गया, 6 हो गया 36 × 6 2 1 6 × 10 की पावर -2, दैट मींस 2.162। अब टफ लगा है ही नहीं तो लगेगा कहां से टफ। ये लो तुम भी खुश हो जाओ कि तुम कर दो। 4 माइक्रोकूलम है, 3 माइक्रोकूलम है, डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। चलो निकालो जल्दी से पोटेंशियल एनर्जी। करो जल्दी से। हाँ आ गया होगा आंसर सबका। तो भाई Q1 Q2 बाय, मिनटों में सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन, डरना नहीं है, पेन चलाओ, गलत से ज्यादा कुछ नहीं होगा, गलत होगा तो क्या दोबारा क्वेश्चन दोबारा कर लेना, दैट्स इट। मतलब थोड़ा ट्राई करना पड़ता है, डरना नहीं। हाँ सेंटीमीटर को मीटर, ये जो ध्यान रहे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है। हमें एसआई में बात करना होता है। 3 में 3 को मार डाला, 9 4 36 बचेगा, इंटू 10 की पावर 9 9 to 11 -1 बचेगा, दैट मींस 3 पॉइंट, और ये वाली नीचे -3 रेपिटेशन भूलना मत। तो इस तरीके से क्वेश्चन आई नो तुम में से बहुत सारे बच्चों ने 11th में क्वेश्चन नहीं किए होंगे, बट दैट डजंट मैटर है, नहीं किए कोई बात नहीं, आप अभी ट्राई करोगे तो अब भी हो जाएगा। इतना टिपिकल नहीं होता लोगों का, सिर्फ फॉर्मूले को पढ़ना है, फॉर्मूले को याद करना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकल के आ जाए। इसी क्वेश्चन को चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन क्या कहता है कि यहां पोटेंशियल था 4 वोल्ट, यहां पोटेंशियल था 16,
में एक चार्ज है, लेट्स से 3 माइक्रोकूलम, 4 into 10 की पावर, एक चार्ज को ए से बी पे लेके गया क्यू चार्ज को, तो वर्क डन। ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, ये मत कहना सर आपने भी कुछ बताया नहीं। वर्क डन क्या होता है? दो तरीके से, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल को सिंपल चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, उस पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो फाइनल मतलब बी पे लेना है, इनिशियल मतलब ए पे लेना है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू वी बी, इनिशियल Q इंटू। तो आप ये देख सकते हो वर्जन का एक का फॉर्मूला बन गया, चार्ज इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। कुछ नहीं रॉकेट साइंस लगाया है, वही बात कर रही है जो हमने भी समझा है, सिर्फ उसका तरीका चेंज किया बोलने का मैंने और एक्सप्लेन करने का। अभी क्यू को क्या लिखा? अभी चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, अभी पोटेंशियल की बी पे 16 है और ए पे 4 है, और वर्क डन पूछा था मैंने 3 into 10 to power minus 6, 16 minus 4 that comes out 12, and here answer is 3.62. That's it. कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, कुछ नया चीजें नहीं पढ़नी, वही तरीका है, वही। चलो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दूंगा इस बार, देखते कितने बच्चे पकड़ पाते हैं। मजा आता है क्वेश्चन करने में, कुछ सोचो नया नया। अभी मैंने कह दिया यहाँ पे कोई चार्ज है क्यू, क्योंकि अभी कह देता हूँ 2 माइक्रोकूलम है, एक चार्ज है स्मॉल क्यू, इसके अंदर दे दी 3 माइक्रोकूलम। पहले ये यहाँ था, अभी मैं उसको यहाँ से यहाँ लेके गया, और मान लो ये डिस्टेंस गलती से मेरे पास 15 सेंटीमीटर हो गई, तो तब और कितना क्या पी से क्यों ले जा रहे हैं? कुछ सोच रहे हमने वर्डन 0 ना, 0 तो आ ही नहीं सकता, इसका तो फोर्स से फील्ड तो दे रहा होगा, इसके फोर्स से फील्ड के अगेंस्ट तो वर्डन करना होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में सोच सकते हो तो देखते हैं यहाँ फोर्स अलग है, यहाँ डायरेक्शन अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इधर है, थीटा चेंज हो रहा है, कैसे कैसे दिमाग चलाएं सर जी। तो इसका आसान तरीका हमारे पास है, सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। अब पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या कहेगा? वर्क डन पूछना है मैंने, वर्क डन फ्रॉम P टू, सिंपल है, वर्क डन क्या बताया था? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। अभी जब वो यहां पर है, इसको R1 ले लेना, इसको R2, तो ये हो जाएगा K Q बाय R2 माइनस K Q बाय R, इसमें से कॉमन ले लिया। अब सारा डेटा ले, क्या क्वेश्चन आसान हुआ नहीं हुआ? सो दिस इज द वे पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट चीजों का आसान बनाता है। वर्क डन इजीली कैलकुलेट करते हैं, कौन इतना दिमाग लगाता फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे? पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो बाकी सब कहां जाए? तो फिर से वैल्यूज अगर हम पुट करें, हमने कैपिटल क्यू इसको लिया है, स्मॉल क्यू हमने इसको माना, R2 माना, ये माना है, R1 हमने इसको लिया। Three into 2 6, 6 into 9 54 into 10 to the power minus 3, and from there
LCM is 30, 2 minus 3, -1 -2 -1. तो -18 into 10 की पावर -2. अच्छा, माइनस एनर्जी मतलब जो एनर्जी है सिस्टम की यहाँ से यहाँ ले जाने पर वो डिक्रीज हो गई है. अगर प्लस आता तो मतलब इतनी वैल्यू से एनर्जी यहाँ से ले जाने पे सिस्टम की इंक्रीज हो गई. तुम खुद देख सकते हो, ये पास तक यहाँ एनर्जी ज्यादा थी, वो दूर गया तो एनर्जी कम हो गई. कितने से कम हुई है? इतने से कम हुई है. तो क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सकता था कि बताओ जब पी से क्यू लेके गया तो सिस्टम की एनर्जी कितने से कम हो गई. तो सिंपल है, वर्क डन निकाल दो. कम हो रही तो वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा. फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. अभी तक हमने पढ़ा था 2 पॉइंट थे और कंसेप्ट है वर्क डन का चार्ज इनटू पोटेंशियल. एक पर्टिकुलर पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअली फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल. इसी वर्क डन के कंसेप्ट को मैं एक्सटेंड करूंगा 2 पॉइंट की जगह 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, जितना तुम्हारा मन करे. और इसी कंसेप्ट से हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे. अभी देखते हैं पोटेंशियल जो 3.4 सिस्टम. इसमें मैंने कह दिया मुझे ट्रायंगल बनाना है. हर वर्टेक्स पे चार्ज लाऊंगा इंफिनिटी से लाऊंगा. यहां पे लाऊंगा इंफिनिटी से Q1, Q1 लाऊंगा इंफिनिटी से, यहां पे Q2 लाऊंगा इंफिनिटी से, और यहां पे मैं लाऊंगा Q3. अब जब तुम लाओगे तो एक एक करके लाओगे. अब एक साथ तुम्हारे 3 हाथ तो है नहीं, चल भाई चल ले आओ, नहीं, एट ए टाइम लाओगे. तो पहले हम शुरुआत करते हैं ए से. तो इनिशियली जब भाई ना तो यहाँ Q2 है, ना यहाँ Q3 है, ना यहाँ Q1 है. फिलहाल इस ट्रायंगल पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो बचा क्या? अंडा. तो क्या पोटेंशियल है इनिशियली ए पे? 0. अभी 4 से कहां ला रहे हो? इंफिनिटी पे. तो वर्क क्या होगा ए पे लाने में? चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल. ए पे पोटेंशियल 0 है, इनिशियल तो वैसे इंफिनिटी पे थे, तो कितना वर्क किया? अंडर. अब बी पे ला रहे, लेकिन बी पर कब लाए? तो Q1 ऑलरेडी यहाँ पे महाराज जी पधार चुके हैं. जब महाराज यहाँ पे आ गए हैं, Q1 charge is already present here, so of course it will give some potential at this point and this point also. So at this point, if we see potential at B will be due to Q1 only, and कितना होगा? Simple K Q1 upon distance, that is R12. तो अगर Q2 को जब मैं वहां ला रहा हूं तो वर्क डन कितना होगा? चार्ज Q2 ला रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल मतलब बी पर ला रहे हैं, बी का पोटेंशियल हमने लिख दिया, इनिशियल इंफिनिटी है. तो बी को लाने में कितना वर्क डन होगा? K Q1 Q2 अपॉन R. तो मतलब हमारे जो ये वाले महाराज जी भी यहाँ पे आ चुके हैं, पधार चुके हैं. तो दोनों मिलकर क्या सी का पोटेंशियल लेंगे, नहीं देंगे? मान लो ए से सी की डिस्टेंस R13 और इसकी डिस्टेंस है R23. तो जब मैं Q3 के यहाँ लाऊंगा, सी तो ऑलरेडी वो एक पोटेंशियल डिफरेंस फील करेगा. वो कितना फील करेगा? जो सी पे होगा. और पोटेंशियल एट सी कितना होगा?
पोटेंशियल V2 A प्लस पोटेंशियल V2 B, दैट विल बी K Q1, डिस्टेंस कितनी है R13, और B कैसे क्या करेगा K Q2 R23। तो वर्क कितना होगा C को लाने में यहाँ पे भाई चार्ज इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस, हम तो इसको इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है 0, तो Q3 C का पोटेंशियल ये है Q2 इनिशियल 0, तो ये आ गया सिंपल सा एक आंसर। अब मैंने कहा एनर्जी बतानी सिस्टम की, तो क्या होगा टोटल वर्क डन होगा, तो टोटल वर्क डन क्या हो गया WA प्लस WB प्लस WC, वो एनर्जी ऑफ द सिस्टम में स्विच ओवर होगा। WA हमारे पास 0 है, WB हमारे पास ये है, WC ये है। इनको अगर मैं लिखता हूं तो हमारे पास पोटेंशियल सिस्टम आ गए K, इनको अरेंज भी कर रहा हूं, पहले ये लिख दिया, अब B लिखो, पहले चलो ये 0 था तो ये लिख दिया, अब इसमें से पहले Q2 Q3 लिख रहा हूं, तो दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। और अगर यहाँ पे देखें सिग्मा के टर्म में लिखे, चलो इतना ही रख देते हैं, तो यह है पोटेंशियल एनर्जी 3.4 सिस्टम। तो अगर तुम यहां से देख रहे हो 3.4 सिस्टम पे, लेकिन क्या है तीनों का मल्टीपल है, Q1 Q2 Q3 एक साथ मिले तीनों चार्ज नहीं, हमेशा मल्टीप्लाई में कितने चार्ज मिले 2 भी क्या मिले, अगर थोड़े ध्यान से देखें मैं दो के पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बनेगा, 2 पेयर ये बनेगा, तीसरा पेयर, तो 3 पेयर। तो जब एनर्जी निकाले सिस्टम की, कोई भी 3 हो या 4 हो या 5 हो, तो 2 के जितने पॉसिबल पेयर हो सके उतने बना देने चाहिए, तो इससे हमें एनर्जी मिलके आ जाएगी। तो ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, हमने इसी टॉपिक पे कंसिडर किया कि जो वर्क डन होता है चार्ज इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल है। याद करें इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 हम लेकर चलते हैं, हमने सिर्फ हर पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला, मल्टीप्लाई किया, वर्क डन निकाला, तीनों को ऐड किया, तो आंसर निकल के आ गया। अब कुछ को लिखना है जल्द से जल्दी, फिर देखते हम आगे बढ़ते हैं, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, करो। अब हम न्यूमेरिकल्स पर पढ़ेंगे, देखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे। मतलब न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, मैं एक सिंपल से लेके चलूंगा, फिर थोड़ा सा अलग से कराऊंगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे ट्रायंगल के सिंपल से डायरेक्ट फॉर्मूला भेज देता हूं, मैं फॉर्मूला याद नहीं करना, सिर्फ इतना याद रखना है कि 2 के पेयर बनाने हैं। और मान लो यहाँ पे 2 माइक्रो है, यार 2 से कम क्या हो तो Q Q Q इक्विलेटरल है, बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितने पेयर बनेंगे, AB BC C, इसकी क्या होगी K Q Q बाय, ये भी यही होगा, अब ये भी यही होगा, तो टोटल पोटेंशियल सिस्टम की क्या है, बस इतने से क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दूं, मैं कहता हूं इस क्यूब को मैं यहां पे ले आया, इस क्यूब को यहां ले आया, इसको यहां मिड पॉइंट पर, तो ये वाला ट्रायंगल बन गया। तो इन सबको इसको यहां इसको यहां इसको यहां वेरी वेरी स्लो प्रोसेस बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा,
क्वेश्चन तो टिपिकल लग रहा है। नहीं रे, वर्क डन क्या है? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो ये हमारा इनिशियल की तरह काम कर जाएगा। तो फाइनल क्या है? अब भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये ए है तो ये ए बाई 2 हो जाएगा। तो अगर फाइनल एनर्जी देखते हैं तो वही के क्यूब इस बाई डिस्टेंस ए बाई 2 हो गई, और तीनों में यही होगा। तो 6k क्यू स्क्वायर बाय ए हो गया। तो वर्क डन क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल ये है, इनिशियल ये है, सिंपल है, निकल के आ जाएगा। आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 6k क्यू स्क्वायर बाय ए माइनस 3k स्क्वायर बाय ए। खत्म। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास कौन देती है? सीबीएसई देती है अपने पेपरों में, नीट देता है, ऐसे छुटकी सी क्वेश्चन देता है, ज्यादा टिपिकल नहीं। चलो जल्दी से बिना सॉल्व करे, कर्व यूज नहीं करना है। क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, बताओ एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी टोटल? जल्दी। 3k क्यू स्क्वायर बाय गलत, जितना मैंने ये बोला। क्वेश्चन में छोटी सी गलती है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, तो ये माइनस आएगी, ये माइनस आएगी, ये प्लस आएगी। तो टोटल एनर्जी देखें तो माइनस के, इसकी देखिए, अब इसकी देखिए और इसकी देखिए, तो आंसर माइनस में आएगा। तो छोटा सा साइन चेंज करते हैं, सब कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो हमें ये याद रखना है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस सिस्टम बाउंडेड है, नेगेटिव एनर्जी है, स्टेबल है। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। अभी मैंने एक स्केयर दे दिया, दिस इज अ स्केयर। हाँ, पोटेंशियल सिस्टम। पहले पेयर बनाओ, कितने पेयर बनेंगे? 4। गलत, 6 नमूनों ए बी। अब दिमाग चलता है आपका, सबका 6 बोलते हैं। डायगोनल भी तो है, डायगोनल ये वाला और ये वाला डायगोनल, ये ए है और डायगोनल डिस्टेंस √2 है। तो ये क्या होगा? के स्क्वायर बाय ए, ये भी के क्यू स्क्वायर बाय ए, के क्यू स्क्वायर बाय ए, के क्यू स्क्वायर बाय ए, के क्यू स्क्वायर, ये √2 है डिस्टेंस। और ये डायगोनल है ना, ये तो 4 हो गए और ये 2 हो गए। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4k क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस 2k क्यू स्क्वायर बाय √2 ए। तो k क्यू स्क्वायर बाय ए कॉमन ले लो, तो 4 प्लस √2, दैट्स इट। इतना ही था। तो टफ है? नहीं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब ये पढ़ेंगे अगर एक्सटर्नल फील्ड आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड। इस बार क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ये कोई सोर्स था, आई डोंट नो इसकी वैल्यू क्या है।
ये इस पॉइंट पे फील्ड दे रहा होगा, इस पॉइंट पे भी, मतलब इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा और वहां भी। मान लो इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है V1 और यहाँ पे पोटेंशियल है ऑलरेडी V2। पहला अगर सोर्स नहीं होता तो यहाँ पोटेंशियल दोनों, इसकी वजह से कुछ होता नहीं, दोनों पे इनिशियल पोटेंशियल 0। तो अगर Q1 चार्ज में यहाँ पे लगा तो इंफिनिटी से वर्णन करना पड़ेगा नहीं, फाइनल। तो इस बार इसकी वजह से यहाँ ऑलरेडी पोटेंशियल V1 है। अब B पे पोटेंशियल कितना हो गया, अब B पे देने वाले तो हैं, ये भी है और ये भी है, तो ये डिस्टेंस R। इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल V2 है, इसकी वजह से KQ1 R। तो वर्गन कितना होगा, Q2 हम ला रहे, तो Q2 इंटू फाइनल माइनस इंफिनिटी पर 0 है, तो ये यहां रख के मल्टीप्लाई कर देते। तो टोटल वर्क कितना हो गया है, एनर्जी का सिस्टम की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी Q1 V1 Q2 V2। तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। कोई रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं है, सिंपल एंड आसान चीजें हैं, कुछ नहीं आने करना। वर्क का यही फॉर्मूला है जिसको मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, चार्ज इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो ये सब आपको याद रखना है, समझना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और इसके बाद हम सीधा इसका क्वेश्चन करा के हम आगे बढ़ेंगे अपने कहाँ, कैपेसिटेंस, कहीं और आगे नहीं जाना, कैपेसिटेंस, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।